महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट was founded by the British in 1875 at शिमला। सो जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो ब्रिटिश के समय में फाउंड हुआ था, यानी 1875 में, वो भी शिमला में। Its head office is at Pune and regional offices are at Bombay, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली। इसका हेड ऑफिस पूना में है, लेकिन कुछ और भी ऑफिसेस है जो कि बॉम्बे में, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और पुणे में है। Maps are prepared every day which indicate the daily predictions about the weather. So रोज़ के लिए अलग अलग मैप्स बनाए जाते हैं जो कि डेली प्रिडिक्शंस बताते हैं कि वेदर कैसा रहेगा। जैसे वेदर फोरकास्ट हमको न्यूज़ में पहले ही बता देते हैं कि यहाँ पर बारिश होने वाली है, ऐसा है कि कल बारिश होगी, परसों से बारिश होगी, यहाँ गर्मी होने वाली है। ये सारी वेदर फोरकास्ट पहले ही हमको प्रिडिक्ट कर देते हैं। सच मैप्स आर prepared and published twice in every 24 hours. In this institute, research goes on continuously on the various aspects like instruments for climatic reading, prediction about the climate, making use of the radar, prediction about the climate related to the seismology, prediction regarding the rainfall by satellites and air pollution, etc. यहाँ पर वो सभी चीज़ को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, यानी उनके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट से वो प्रिडिक्शन लगा लेते हैं, पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट provides the important information regarding the weather and the climatic condition on other departments like the aviation, shipping, agriculture, irrigation, marine oil exploration and the production etc. So जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कई सारी इंफॉर्मेशन बताता है वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, कि एविएशन में, स्पेस में कैसा रहेगा, पर स्काई में क्या रहेगा, शिपिंग या वाटर में, एग्रीकल्चर पर्पस, यानी हर चीज़ पहले ही प्रिडिक्ट हो जाती है। प्रिडिक्शन रिगार्डिंग calamities like the dust storms, sandstorms, heavy rainfall, hot and cold waves, tsunami, etc. are communicated to the various departments and all types of mass communication media and all the citizens. For this purpose, India has launched several satellites equipped with high class technology. इसके लिए इंडिया ने बहुत सारी सैटेलाइट्स इक्विपमेंट्स बनाए हैं जिसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है। ऑब्जर्वेटरीज एट द सेवरल लोकेशंस are doing excellent work in the analysis of the information received for the satellite. आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉनसून मॉडल एंड द क्लाइमेट प्रेडिक्शन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द ट्रेडिशन of the forecasting the monsoon season in India is older than 100 years. So forecasting the monsoon यानी ये ट्रेडिशन तो बहुत पुराना, यानी 100 साल पुराना है। After the famine of 1877, H.F. Blandford, the founder of IMD, had made such a prediction for the first time, taking the snowfall in the Himalayas as a parameter of this prediction. So ये पहली बार प्रेडिक्शन हुआ था, प्रेडिक्ट किया गया था कि हिमालयाज़ में कब रेनफॉल होगी। In the decades of 1930, and the director of IMD, Sir Gilbert Walker, has underlined the relationship between various worldwide climatic factors and the Indian monsoon, and based on the available observation and the previous recording related to the relationship,
He put forth a hypothesis regarding the nature of the monsoon. With the initiative of Dr. Vasantro Gowarikar in the decades of 1990s, a monsoon model based upon the 16 worldwide climatic parameter was developed. This model was used from 1990 to 2002. Here are some model: mathematical model, holistic model, and the statistical model. Presently, new models are being developed at the IITM. Work is in progress at the two levels, naming the designing new models and developing the new technology. The main focus on developing of the radar system and the satellite technology. Always remember, any meteorological model depends upon the interrelationship between the parameters used in that model and results expected from it. However, as this interrelationship with reference to the ocean and the atmosphere are never constant, meteorological model need to be changed continuously. आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी और आईक्यू लेवल के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ द आर पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ मेंट बाय पॉल्यूशन? क्या बता सकते हो कि पॉल्यूशन क्या होता है, यानी प्रदूषण क्या होता है? इन विच डिफरेंट वेज डू आर सराउंडिंग गेट पॉल्यूटेड? कौन कौन से अलग तरीके से हमारे सराउंडिंग, हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूट होता जा रहा है, हमको यहाँ पर सब कुछ बताना है। सो ऑब्जर्व दिस, ऑब्जर्व द गार्बेज कलेक्टेड इन द डस्टबिन। यहाँ पर ऑफ योर क्लासरूम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द वेरियस मटीरियल इन इट। सो आपको एक लिस्ट बनानी है आपकी क्लासरूम के डस्टबिन में जो भी ऑब्जेक्ट कलेक्ट हुए, जो भी गार्बेज कलेक्ट हुआ, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। डिस्कस विथ योर टीचर हाउ दिस मटेरियल कैन बी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ। और फिर आपको आपकी टीचर के साथ डिस्कस करना है कि कैसे ये मटेरियल को आप डिस्पोज कर सकते हो। कैन वी डू द सेम विद द गार्बेज जनरेटेड इन आवर हाउस? क्या हम सेम तरीका अप्लाई कर सकते हैं जो गार्बेज हमारे घर में हो रहा है? थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचो। यहाँ पर जो ऐसे सॉलिड वेस्ट दे रखा है, क्लॉथ है, पेपर है, बॉटल है, प्लास्टिक कैंस है, टीन कैंस है। ऑब्जर्व एंड डिस्कस व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी सी इन द टू पिक्चर अलॉन्ग साइड ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी दो पिक्चर दे रखी है, उसमें क्या डिफरेंस है? सो यहाँ पर हमको डिफरेंस लिखना है, दोनों पिक्चर्स में हमको क्या क्या डिफरेंस दिख रहा है एंड व्हाट शुड वी डू to permanent maintain the condition seen in the picture B। so पिक्चर B में हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि हम परमानेंटली ऐसी कंडीशन को मेंटेन कर सके। सो उसके हमको कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ पॉइंट्स लिखकर बताने हैं। मैनी वेस्ट मटेरियल्स आर जनरेटेड थ्रू द वेरियस डेली ह्यूमन एक्टिविटी। कई सारा वेस्ट मटेरियल तो हमारी एक्टिविटी की वजह से ही होता है। दिस इज़ कॉल्ड द सॉलिड वेस्ट। If this waste material are properly disposed of, they can be valuable source of energy. Currently, solid waste is a serious worldwide problem as it causes both the water and the soil pollution. Solid waste is also a serious problem from the point of view of economic growth, environmental degradation and the health. It has posed a serious threat to the nature and the human habitat because of the air, water and the soil pollution it causes. Do you know garbage production per day?
Solid waste generated in the main metro city of the state is approximately as follows. In Mumbai, 5,000 tons. In Pune, 1,700 tons. And in Nagpur, 900 tons. On 26 July 2005, a serious flood calamity has arisen in Bombay. Improper solid waste management was one of the main reasons behind the calamity. Thus, we see that accumulation of the solid waste can lead to various calamities. So, what is meant by solid waste? Solid waste क्या होता है? And what are the different things included in the solid waste? और solid waste में क्या क्या चीज़ें include होती है? We make use of many materials and articles in our daily life. हम हमारी डेली लाइफ में कई सारे मटेरियल का यूज़ करते हैं, कई सारे आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड, और सभी आर्टिकल सभी मटेरियल अलग अलग टाइप के रहते हैं. सम ऑफ देम आर रीयूजेबल बट अदर हैव डिस्कार्डेड. कुछ तो रीयूजेबल रहते हैं, किसी को हम रीयूज़ कर सकते हैं. However, if they are not properly disposed of, it affects the environment adversely. अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करेंगे, तो ये हमारे इन्वायरमेंट पर अफेक्ट करेगा, और वो भी बैड इफ़ेक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट पर. सो यहाँ पे कुछ लिस्ट बना रखी है, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट कौन कौन से: प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पेपर, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट्स स्किन्स, ग्लास शीट. ऐसे इंडस्ट्रियल वेस्ट जैसे कि केमिकल, ऐश, मेटल्स, हजार्डियस वेस्ट. ऐसे आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए हैं और उनके कुछ सोर्सेस हैं. ये आपको खुद से रीड करना है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम बेसिस पर आपसे पूछ सकते हैं कि गिव टू एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट. तो आपको ये एटलीस्ट 5 सोर्सेज पता होने चाहिए. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी, ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज़ ईजिली डिग्रेडेड बाय द माइक्रोब्स. ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रहता है वो ईजिली डिस्पोज हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है माइक्रोब्स की वजह से. इट मेनली इंक्लूड्स अ किचन वेस्ट. इसमें मेनली किचन वेस्ट इंक्लूड रहता है, जैसे कि स्पॉइल फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट पिल्स, वेजिटेबल पील्स एक्सेट्रा. Parts of the plants, soil, ash, dung, etc. This waste is mainly of the organic type and is also called the wet soil waste. ये जो वेस्ट रहता है वो ऑर्गेनिक रहता है, और इसको हम वेट सॉलिड वेस्ट भी बोल सकते हैं और वेट गार्बेज यानी गीला कचरा भी बोल सकते हैं. इट इज़ केयरफुली डिकम्पोज वी कैन गेट द कंपोस्ट एंड द फ्यूल्स ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम इट. अगर हम इसको बहुत अच्छे से डिस्पोज करेंगे तो हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्यूल भी मिल पाएगा. सच बायोफ्यूल प्रोजेक्ट्स हैव बीन स्टार्टेड इन मैनी सिटीज. और कई सिटीज़ में बायोफ्यूल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए गए हैं. नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम ड्राई सॉलिड वेस्ट बोलते हैं. इसको हम इजीली डिग्रेड नहीं कर सकते. इसको डिग्रेड करने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए रहता है. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू डिग्रेड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. इट इंक्लूड्स प्लास्टिक, मेटल और अदर सिमिलर मटेरियल्स. यूज़ योर ब्रेन पावर. वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिसाइकल द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ये ज़रूरी क्यों है कि हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करें. नेक्स्ट इज
विच मटेरियल्स आर इंक्लूडेड इन द सॉलिड ड्राई वेस्ट? सॉलिड ड्राई वेस्ट में कौन कौन से मटेरियल्स इंक्लूड कर सकते हैं हम? कौन कौन से मटेरियल सॉलिड ड्राई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स एंड आर्टिकल्स इन योर एरिया एंड प्रिपेयर अ चार्ट. यहाँ पर आपको एक इस टाइप का चार्ट बनाना है. मटेरियल्स वो डिग्रेडेबल है या नहीं, यानी ऑर्गेनिक है या नहीं, नॉन डिग्रेडेबल इनऑर्गेनिक है या नहीं, रिसाइकल कर सकते हैं उसको, रीयूज़ कर सकते हैं, और क्या वो टॉक्सिक है, क्या वो जहरीला है. इस टाइप को आपके आसपास से जितने भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसकी लिस्ट बनानी है. Nowadays an electronic devices द सेल फ़ोन इज़ वेरी पॉपुलर. आज के टाइम पे सेल फ़ोन बहुत ही पॉपुलर हो गया है. फ्रॉम द मोबाइल शॉप नियर योर हाउस फाइंड आउट हाउ दे डिस्पोज द ओल्ड एंड द ब्रोकन डाउन द सेल फोन्स. सो अपने घर के आसपास के जो मोबाइल शॉप है वहाँ से पता लगाओ कि वो कैसे डिस्पोज करते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं मोबाइल फ़ोन्स को. सो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट. क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है? इफ़ेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है. सेकंड, बैड ऑर्डर ऑफ वेस्ट, यानी बहुत गंदी स्मेल आती है. प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस. टॉक्सिक गैसेस यानी जहरीली गैस का प्रोडक्शन होता है. डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी. नेचुरल ब्यूटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है. एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज़. उससे डिसीज़ भी फैलती है. आई होप बच्चों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.